चीज में फोकस था ग्रोइंग अप? डेटिंग में बहुत फोकस था। पर्सनालिटी तो थी मेरी, उस वजह से आप डाइवर्ट भी होते हो फिर ऑफ कोर्स। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन फॉर डेजी? 3 years। सब कुछ पता था कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि सारी गलतियां तो कर ली थी, बहुत सारी। कहा ऐसा करो कि 4 लोग सोचे कि वाह 4 लोगों में इसका इतना नाम हो गया है। आई थिंक सब अब पैसा ही मैनिफेस्ट कर रहे जब से यूनिवर्स मेड मी रिच। Hi guys, welcome back to the Divesh Show by Big Flex Marketing. You're on episode number 26. आज जो हमारे पास गेस्ट आने वाले हैं आफ्टर नताशा, शी इज अगेन अ वेरी बोल्ड पर्सनैलिटी. हमारी मुलाकात एक्चुअली बास्केटबॉल कोर्ट में हुई थी. We were both in the same batch learning basketball last year only, and the way she used to dress, the way she used to speak, इतनी ज़्यादा इंट्रीगिंग उनकी पर्सनालिटी है. शी इज़ वेरी बोल्ड, you know, and I in the end spoke to her and she told me about her business. So she is currently running a footwear brand by her own name. Her name is Daisy Tanwani and the brand name is Daisy. और उनके जो footwear का डिज़ाइन है वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है उनकी पर्सनैलिटी पे. सच बोल्ड चंकी पीसेस दैट दीज गाइज हैव रिसेंटली लॉन्च्ड, और इतने मॉडर्न, इतने अच्छे डिज़ाइन. अलॉन्ग विद दैट देयर इज़ अ स्मॉल ट्रेडिशनल लाइन एज वेल विद एम्ब्रॉयडरी एंड ऑल. तो हमने क्लोथिंग बहुत कर लिया, हमने फूड बहुत कर लिया. आई रियली वांटेड टू स्पीक टू समवन जिनका फुटवेयर का ब्रांड हो. आई एम गोइंग टू अनवेल कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, क्या किस चीज़ से, जैसे she mentions that उनके vegan products हैं. So how does that a footwear brand becomes vegan, and what all she is doing to make sure that her brand is sustainable for the environment also. तो इन सारी चीज़ों पे बहुत सारी चर्चा होएगी. So stay tuned. I am just going to pick her up and I'll see you then. Bye. How are you? I didn't think we'll meet like this again. Likewise. How are you? I'm so good. That day I received a message. I was like, I just went and I saw it, and then I, like, of course you send the message from your own profile, right? So I saw your face. I went, oh, we used to be basketball players together. Although that was a fun time. Yeah. After it was just not. Yeah. So how have you been? How is work? I'm so good. Work is so good. Recently you started this podcast thing also, no? Yeah. वो कैसा चल रहा है? Just started. So as you know how it is when you just start. True. But मजे. Yes. How long has it been for Daisy? 3 years. 3 years. Oh, nice. अब तो थोड़ा ऐसे सेटल्ड फीलिंग आ रही है या अभी भी ऐसे लग रहा है Very settled, very settled. अच्छा. I think because of all the experiences that I've had before. हाँ. है ना? तो I mean this really came as something कि ऐसा फील हुआ कि मैं prepared ही थी इसके लिए, कि सब कुछ पता था कि क्या करना है, कैसे करना है. Right. क्योंकि सारी गलतियां तो कर ली थी, बहुत सारी. True. So yes, feeling settled. Yes. आपका पॉडकास्ट से वो क्या है विजन? Actually as a business person I believe कि ना हमें बहुत, मतलब मैंने ये समझा है with my journey that we have to be open to experiment, to try new things, and to have new streams. Because ultimately, to be very honest, I want all of this traffic to ultimately come to Daisy in some or the other way. Right. Of course, when I'll do a podcast and I'll constantly talk about it, and one day maybe, you know, I become Spotify exclusive. We don't know that how do we end up, or where do we end up being. So I'm and I'll be speaking my brand name time and again. So I feel uska benefit. I mean, I want to like Threads आया initially even, है ना, मैंने अपना नहीं Threads पे अकाउंट बनाया पर्सनल, बट डेजी का बना दिया. तो इमीडिएटली बना दिया, इमीडिएटली एक्टिव भी हो गए. तो एक वो स्पॉन्टेनिटी होना कि नई कोई चीज आ रही है उस पे कैसे इमीडिएटली हमें, I mean we have to go for it.
वो उस वजह से ही किया है बेसिकली. Brand visibility is that a challenge? What's your experience has been? Like For me, first no. of all तो कैसे Daisy की brand presence बनी है, and then you know how come you that sale is now smoother? Yeah. So when I initially started, बहुत ही कम, मतलब मैं पूरी एक थोड़ी छोटी सी जर्नी बता देती हूँ. हमने केवल 14,000 रुपीज से स्टार्ट किया था. और आई मीन टुडे वी आर एट 7 फिगर बिजनेस. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे को ऑलरेडी, मैंने जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैंने कुछ 3-4-5 बिजनेसेस, कुछ सक्सेसेस, कुछ फेलियर्स, ऑल्दो सब छूट गए बिकॉज ऑफ बचपना. और इतना वो नहीं होता ना अपने की, हाँ, कंसिस्टेंसी नहीं होती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. आपको वैल्यू नहीं होती है कि आपको पता नहीं होता यार अगर ये छूट गया तो ये छूट जाएगा. आपको लगता है इट विल पिक अप, राइट. तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वहां से आ गए थे. तो जब मैं यहाँ पे आई मुझे बहुत कुछ पता था कि हाँ मुझे ये करना है. प्लस ऑफ कोर्स कभी कभी किसी चीजों की टाइमिंग भी होती है. उसकी टाइमिंग भी ऐसी थी मेरी लाइफ के साथ, प्रोबेबली डेजी की, दैट इट जस्ट हैपेंड. एंड देन व्हेन इट हैपेंड आई न्यू, बिकॉज इंस्टाग्राम जब शुरू में ही आया था तभी मैं इंस्टाग्राम पे एक बिजनेस पुराना दिल्ली जो मैंने बता या थ्रिफ्ट. एट द टाइम आई डिडंट इवन नो कि व्हाट इज थ्रिफ्ट. आई मीन दैट कॉन्सेप्ट which has, I mean, it has become a concept now, right? Of course वो exist तो करता ही होगा, जैसे लैवेंडर कलर कभी exist करता था, but वो अब चला तो सेम तरीके से putting a name on that. Yeah, of course. तो उस point of time पे वो चीज मैं करती ही थी Instagram पे. How did you start that उस time पे? यार again I'm very spontaneous as a person, and I feel I'm very confident. I think much more than someone should be. थोड़ा ज्यादा हूँ मैं उससे, तो मुझे ना डर नहीं लगता कुछ नया करने से. I'm like let's do it, try कर लेते हैं ना. Because I've been very confident as a person, because of course because of my parenting, the kind of जिस तरीके से मुझे, मतलब I've been brought up, तो वो चीज हमेशा से मुझ में रही है कि okay let's do it. तो बस I just went to Delhi and I picked up some stuff. 2-3 हजार रुपए थे शायद, ऐसे एग्जैक्ट हर बार नंबर्स नहीं आ जाते क्योंकि बहुत पुराना वो हो गया, बट 2-3 हजार होते. और उससे आई शॉप सम स्टफ, आई गॉट इट होम एंड आई टुक पिक्चर्स. इंस्टाग्राम आया था नया, इंस्टाग्राम पे डालना स्टार्ट कर दिया. एंड वो अचानक से बहुत ही वायरल सॉर्ट ऑफ, मतलब विद इन आई थिंक 3-4-5 मंथ्स हम 25,000 या 25 या 30,000 फॉलोअर्स पे थे इंस्टाग्राम पे, उस पेज पे. Wow. Yeah. This was which year? I think 2016. So you were studying like college? Yeah. Okay. I just came in college. And where, like schooling or college? Schooling was in Seedling. Unfortunately. This public Seedling? Yes, Seedling public. Oh, my school will sue me, but sue me. I'll sue you back. And then in INIFD, my graduation was in fashion. Okay. That also very accidentally, because I thought I don't want to, like do something study. Boring. Yeah, no, I don't want to study. I was very but of course I was not focused on studies. इस वजह से बुरी थी, ऐसे बुरी नहीं थी, शार्प तो मैं थी हमेशा से. But रट नहीं सकते थे, is that? अरे मतलब फोकस ही नहीं था यार, फोकस ही नहीं था वहाँ पे. तो किस चीज में फोकस था ग्रोइंग अप? डेटिंग में बहुत फोकस था. एक होता है ना, आप थोड़ा स्कूल में पर्सनालिटी तो थी मेरी, तो उस वजह से आप डाइवर्ट भी होते हो फिर ऑफ कोर्स, क्योंकि लोग आपको अप्रोच करते हैं, आपको उस तरीके से लगता है, तो आप ऑफ कोर्स, सो दैट हैपेंड. And even business happened. I tasted money basically. तो बहुत इससे पहले भी कुछ yes. वो क्या so at 16, basically 15 or 16, I started my chocolate business in school. Wow. That also happened just like that. So is that like your, मतलब आपने parenting में बोला, so at that time मतलब कौन सपोर्ट कर रहा था, कि मॉम थे साथ में या फादर? Yeah, see, I am a Sindhi. Okay, so it runs in making money runs in my blood. Okay, we are the best when it comes to making money. Okay,
तो ऑफ कोर्स मतलब मेरी मदर ने मुझे बोला एक दिन कि यार ऐसे चॉकलेट का है, तुम कर सकते हो स्टार्ट. एंड नेक्स्ट डे वी बॉट दैट ब्रिक, कंपाउंड ब्रिक आती थी ना, उससे आई स्टार्टेड. एंड हाँ, मोल्ड्स में डाल के देन आई स्टार्टेड अ कॉन्सेप्ट. वी बोलती हूँ क्योंकि मम्मी उसमें इक्वली इन्वॉल्व थी. घर पे पैकिंग करती थी, बहुत सारी चीजें वो करती थी. सो तब वहां से वो स्टार्ट हुआ चॉकलेट बिजनेस. 1200 रुपए लिए थे मम्मी से. एंड नेक्स्ट डे उसको स्कूल में लेके गई, 5000 में मल्टीप्लाई किया, गेव 1200 टू मम्मी, और फिर उस पैसे को रोटेट किया फुल ऐश. मतलब तो वो जो टेस्ट ऑफ मनी होता है ना, ऑफ कोर्स वो आपको डाइवर्ट करता है. और दैट कंपाउंडिंग आल्सो कीप्स यू गोइंग. आई मीन इट्स सो फैंसी टू बी एबल टू यू नो, मतलब क्या पॉकेट मनी मिलती थी यार उस समय. महीने की 200-300 रुपए पॉकेट मनी मिलती होगी. उस टाइम पे आप 5-6 हजार, 10,000, 20,000 भी कमा रहे हो, तो आपको तो एक वो फीलिंग आएगी ना कि यार आई मीन कम ऑन, वो वाली. बट उस समय डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता ना, टू डाइजेस्ट अच्छा हो रहा होता है तो उसको कलेश करने होते हैं उसके बीच में. आई गेट दैट. सो वहां से वो स्टार्ट हुआ था. फिर बोर्ड्स में I had to drop it कि यार बोर्ड्स है, और of course पेरेंट्स भी पैसों को उस टाइम इतना तो वो कोई वेटेज देंगे नहीं कि हाँ पैसे कमा रहे तो पढ़े ना. पढ़ना तो है ही, अब स्कूल में है तो. ऑल्दो मैंने कुछ महान नहीं किया. मेरे 51% आए थे 12th में. एंड लेजिट मेरे पापा ने गाना गाया था, मेरा पप्पू पास हो गया. ही वाज सो हैप्पी. So chocolate business, इसके बाद the thrift business. तो 25,000 तक पहुंचाया, वायरल हो गए आपके प्रोडक्ट्स एंड ऑल. फिर उसके बाद छोड़ा क्यों? तो बेसिकली क्या हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब मेरा ये थ्रिफ्ट का काम था तो मेरी पैकिंग बड़ी अनप्रोफेशनल होती थी. पैकेट्स तो बहुत ज्यादा जाते थे, बट पैकिंग बहुत अनप्रोफेशनल होती थी. और तो ये सब कौन कर रहा था? सब सोर्सिंग, पैकिंग, सब कुछ, कस्टमर से बात करना, ऑर्डर्स लेना, एवरीथिंग. इवन व्हेन आई स्टार्टेड डेजी, सब कुछ मैं ही कर रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई बेसिकली. तो समवन from the company that I used to ship my products reached out to me, and they had a जूती ब्रांड. एंड उस जूती ब्रांड को वो उन्होंने मुझसे पूछा मैं क्या करती हूँ. अच्छा, पैकिंग बड़ी अनप्रोफेशनल थी, तो वो समझ गए थे कोई ऐसा बंदा है जिसे रीच आउट किया जा सकता है. तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया. मैं भी इमेच्योर, मैं उनसे मिलने चली गई. और उन्होंने बोला कि हमारा ऐसा ब्रांड है, ऐसे है, और आप इसे हम मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे करते हैं, और आप इसको मतलब आप इसको कीजिए इंस्टाग्राम पे जैसे आप अपना करते हैं. तो ठीक है, मैं आपसे 25,000 लूंगी, कर लूंगी. अच्छा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बुद्धि ही नहीं थी. बोलते ना, इतना सब कुछ इतना वो था, मिसिंग था. इतना वो था ही नहीं कि यार मैं अपने काम से ही इतना अच्छा कर रही हूँ, ऑलरेडी कर रही हूँ. सो व्हाई डू आई. तभी ऐसी एक फीलिंग होती ना कि ओ समवन एल्स वन, मतलब कोई और मुझे 25,000 पे करने को ओके है. That validation. that validation. तो वो भी करते हैं, और he was okay, मैं अपना काम भी करूँ. तो मुझे लगा हाँ ठीक है, 2 स्ट्रीम ऑफ इनकम से क्या बुरा है. तो वो करना स्टार्ट किया. बहुत मतलब मेरी जो इनिशियल जर्नी है ना, मेरा पॉडकास्ट का एक जो सेकंड एपिसोड है उसमें मैंने बोला भी है कि गलतियां बट ग्रोथ. तो मेरी जो 3-4 साल की जर्नी है, बिकॉज ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड वर्किंग अर्ली, तो एक्सपीरियंस तो बहुत मैंने गेन कर लिया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. पीपल स्टार्ट एट 22-23, राइट? आई स्टार्टेड डेजी एट 23, बट उससे पहले मेरे पास वर्क एक्स बहुत हो गया था. बट उस वर्क एक्स के साथ जो इमेच्योरिटी थी, उस इमेच्योरिटी का कंपाइलेशन भी बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर चुकी थी मैं तब तक. टू लाइक I went to London to do a styling course. It was a diploma course for a month. Then I went to London again after 4 months for presenting my collection at London Fashion Week. तो इतनी छोटी चीजों की वजह से, अच्छा, this business I was doing, तो वो जो instability थी ना उस point of time पे, वो एक basic, of course बहुत बड़ी मिस्टेक्स मैं उसे कह सकती हूँ अगर मैं वो फर्स्ट चीज स्टार्ट करती, और आज तक वो कर रही होती. एक बहुत मेरी फेवरेट, मतलब मुझे बहुत पसंद है एक ब्रांड, कैट्स एंड बोज, इंस्टाग्राम पे, एंड दे हैव अप्रोक्सीमेटली 150K और 200K फॉलोअर्स. जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं पुराना दिल्ली कर रही थी ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने वो कैट्स एंड बोज स्टार्ट किया था. एंड टुडे शी इज
amazing as a business woman and as a business whole all together. तो अगर वो कंसिस्टेंसी तब से रहती तो बहुत अच्छा होता, बट नहीं थी. ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके वो आई 23 पे, तो ठीक है, वो सही सीख लिया वो. इतने अनस्टेबल लोगों को है ना लाइफ डंडे मार मार के बिठाती है आराम से. हाँ, कि भाई टिक जाओ. ठीक है. मेरे नाना जी ने मुझे बहुत बार इस चीज के लिए टोका है टू बी कंसिस्टेंट, बट इट केम विद माई एज ओनली. वो मेरी जब टाइमिंग होनी थी ना, मुझे जब खुद भगवान ने डंडा मारा है ना, तभी आया है वो मुझे. और ये कोविड 3 साल पहले, मतलब कोविड के बीच में हुआ है? नहीं, कोविड से पहले. सो बेसिकली कोविड केम इन मार्च. फेब्रुअरी तक मेरा फर्स्ट लॉट ऑफ वो आ चुका था, डेजीज आ चुके थे, फर्स्ट लॉट ऑफ फुटवेयर. और फेब में स्टार्ट भी कर चुके थे हम अपना वेबसाइट वगैरह सब कुछ. देन मार्च में कोविड हैपेंड. So yes, it's not a COVID baby. मतलब मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि कोविड में स्टेबिलिटी आई या उससे पहले ही माइंड मेकअप हो गया था? हो चुका था माइंड मेकअप. आई थिंक जब तक वो जूती ब्रांड छूटा और सारी चीजें छूटी, 5-6 महीने का एक गैप आया. आप लगातार अपने आप को एक बोलते ना, आप अपने आप को वो स्पेस ही नहीं देते हो टू इवैल्यूएट. तो वो स्पेस खुद ही जब नेचुरली आई, क्योंकि सब छूटा, उससे बहुत सारी ग्रोथ मिली. ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोसेस. जो मैं आज हूँ वो मैं 3 साल बाद और बेटर होंगे एज अ पर्सन. तो हाँ, जब स्टार्ट किया होगा तब इतना वो नहीं होगा, बट इवेंचुअली 3 सालों में भी बहुत सारी जर्नीज हैं जो मैंने मेंटली ट्रैवल करी होंगी. You had like this cafe partnership. Yes. Also. Yes. In the same. Was which phase of yours? ये उसी फेज में था. मेरे इंस्टेबिलिटी वाले फेज में, in my whole experimental era where I wanted to do everything. So yes, तभी था ये. That also वो कोविड के टाइम पे छूटा था जब डेजी स्टार्ट हो चुका था ऑलमोस्ट. ओके. तो मतलब वो हो ही चुका था, बंद तो वो हो ही चुका था बेसिकली. बट क्योंकि हमारे रेंटल अग्रीमेंट्स थे, बहुत सारी चीजें थी, वो कोविड के टाइम पे बेसिकली ब्रेक डाउन हो पाया. क्योंकि आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी करते हो, राइट, व्हेन यू आर राइट. सो यू वर वर्किंग विद अ कपल ऑफ पार्टनर्स? यस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अच्छा. दीज वर योर फ्रेंड्स? या फ्रेंड्स. अच्छा. फ्रेंड्स ने क्या सिखाया और फैमिली ने क्या सिखाया? फ्रेंड्स ने यार फैमिली ने बहुत सिखाया. फ्रेंड्स के साथ भी आप सीखते हो रेगुलर चीजें, बट मेरी फैमिली बहुत अपलिफ्टेड है. तो माय फादर इज अ बिजनेसमैन बट ही इज वेरी स्पिरिचुअल. तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई. वन ऑफ देम वाज कि कीप योर क्रिटिक्स क्लोजर, राइट. बहुत समय तक आप ये चीज नहीं समझ पाते हो कि जो लोग आपको, यार ऐसे वर्ल्ड में जहाँ लोग आपको आके बताना नहीं चाहते कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि उन्हें लगेगा यार ऑफेंड हो जाएंगे. इफ समवन्स टेलिंग यू कि नहीं यार दिस कैन बी करेक्टेड, ये चीज आप सही कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं आप हर चीज सुनो, बट आप एनालाइज तो कर सकते हो. इफ समवन्स क्लोज टू यू एंड आप जानते हो कि वो आपको गलत नहीं सोचेगा, तो आपका एनालिटिकल माइंड ऑन होना चाहिए हमेशा, खुद के लिए भी, जैसे दूसरों के लिए होता है ना. जैसे दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करें. तो वो एनालिटिकल माइंड ओपन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन सेल्फ एज वेल. सो वो फैमिली से सीखा. फ्रेंड्स से मैंने सीखा टू सपोर्ट माई फ्रेंड्स. whatever I did, even whatever I do now, they are the first people who buy from me. They are the first people, मतलब जो मेरा कुछ सुनते हैं, मेरा कुछ शेयर करते हैं. तो आई एम वेरी लकी टू हैव सच फ्रेंड्स जो मतलब वो जो एक सपोर्ट होता है ना खुद से ही, जो नेचुरली इट हैपेंस. वो इस जर्नी में मैंने सीखा कि कितना कैसे वो हो सकता है इतना अच्छा और इतना प्योर, राइट. तो यस. अभी भी इंस्टेबिलिटी वाला कोई कीड़ा बचा है या सारे मार दिए? या अभी भी मन करता है सब छोड़ो यार, भागो यहाँ से? नहीं, जो वो इनकंसिस्टेंसी और इंस्टेबिलिटी वाली चीज थी ना, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है सब कुछ डेजी से. ऑफ कोर्स आई स्टिल हैव दोस फीलिंग्स जहाँ मुझे लगता है कि आई वांट टू डू दिस, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने कभी चेक तो नहीं कराया, बट ADHD एक वो है जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में. मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि
probably I have it. क्योंकि मुझे ना एक अटेंशन में बहुत मुश्किल होती है. तो क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन को कई लोग इतना सीरियसली नहीं लेते और उससे निकल के आ भी जाते हैं क्योंकि पता ही नहीं होता. मुझे लगता है शायद इस बारे में भी आई एम नॉट श्योर आई हैव इट और आई डोंट, बट आई फील लाइक मुझे वो था. तो अब मैंने उन सब चीजों को आके I have tried to connect it to Daisy. Let's say I wanted to do podcast. तो वो मेरे Daisy के अराउंड है, right? तो उन सब चीजों को मैंने कनेक्ट कर दिया है basically. It's weird. Your story is so similar to mine. Like it's crazy. With the stability and then you know in the end your core तुमको समझ में आ गया. जैसे my core is obviously marketing. Yeah. So again the show, like you are doing the podcast, it's again like a of course extension of the marketing business, but मतलब that core you don't want to leave after a point. जो इतनी बार इतने थप्पड़ खाने के बाद मिलता है ना, then you don't let go of that. थप्पड़ और बातें भी, क्योंकि यार जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको बोलेंगे भी कि यार क्या हो रहा है, ये कर रहे हो फिर ये कर रहे हो, क्यों नहीं रहे हो तुम. हाँ. Yes. बट आपकी अपनी जो जर्नी है वो आपकी अपनी पर्सनल जर्नी है. मतलब कोई कुछ भी कह ले, जब आपको वो चीज क्लिक करेगी ना वो तभी करेगी. True. तो या wow. Footwear as a product really intrigues me. मतलब जैसे कपड़ा सुना है obviously, मतलब no rocket science. Footwear after a point लगता है rocket science. तो footwear कैसे choose किया सबसे पहले तो for Daisy? So I was doing जूती प्रोडक्ट, राइट? हाँ. इट वाज, तो मुझे एक थोड़ा बहुत तो सेंस था ही इस मार्केट के बारे में, नॉट इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेंस बट इन सेंस ऑफ मार्केटिंग. क्योंकि फॉर दैट कंपनी आल्सो आई वाज डूइंग मार्केटिंग कि कैसा कस्टमर होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है. एंड देन अगेन as spontaneous as I am, one fine day I found a supplier, right? I searched for a third party manufacturer जो मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर अदर ब्रांड्स. यू गिव देम योर डिजाइंस एंड दे मैन्युफैक्चर फॉर यू. सो आई फाउंड one of the supplier. मैंने उनसे samples मंगवाए and luckily the first sample set that came into me, मतलब जिनसे मैंने first बात करी वो ही मेरे मतलब आज तक वो हैं. तो अच्छा, एक और चीज, जरूरी नहीं है कि आपको अगर कोई चीज करनी है ना तो आपको उसके लिए पढ़ाई आपने उसमें करी भी ही हो. लाइक आई हैव नो बैकग्राउंड ऑफ फुटवेयर, नो बैकग्राउंड. इवन अगर आप मुझसे फैशन पूछोगे तो मैंने फैशन में भी इतनी इन डेप्थ पढ़ाई नहीं करी है. ऑल्दो मेरी ग्रेजुएशन थी उसमें, बट आपको और मुझे हम सबको पता है कि ग्रेजुएशन में कौन कितना पढ़ता है. तो हमने एक मतलब, बट अगर आपको कुछ करना है ना तो एक बार उसमें घुस जाओ. वंस यू एंटर यू लर्न एवरीथिंग. तो खुद ब खुद तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स जुड़ते जाते हैं. they'll teach you. वो जो एक फियर है ना शुरू में जो रहता है कि यार सही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. आज मैं भी जब मेरा पुराना 3 साल पुराना चके डेजी का इंस्टाग्राम देखती हूँ तो मुझे कभी लगता है oh my God, क्या है ये. मतलब अपना काम देख के ऑफ कोर्स ऐसा तो लगता है कि वाओ कहाँ से शुरू किया, पर ऐसा भी लगता है कितना किडिश है, राइट? बट कभी कभी आपकी जर्नी इवेंचुअल हो सकती है. देयर आर सम पीपल हु आर वेरी परफेक्ट, उनको पता है उन्हें क्या करना है. इट्स गुड फॉर देम. बट देयर आर सम पीपल हु डोंट नो कि उन्हें कैसे करना है. तो एक बार आप उसके अंदर एंटर हो जाओ, इवेंचुअली आप ग्रो हो जाओगे, आप उस चीज में ग्रूम हो जाओगे. तो एक वो जो फियर है ना उस चीज का कि होगा कि नहीं होगा, वो फियर नहीं रखो. जस्ट डू इट. मतलब मेरा ये पर्सपेक्टिव है इस पे. राइट. I've seen a couple of your brand collaborations also. एक कभी Paradise के साथ. We did collaborate with Birds of Paradise, which got featured at Shark Tank India. So we collaborated for a hamper with them. So in that hamper comes one of our product and one of their product. So that's live on our website. How did you reach out to these people? I reached out to so they reached out to me first for a collaboration of a giveaway. So I had a point of contact. But even if someone doesn't have a point of contact in general, just DM them and you can have I mean, of course, if I'm literally making a hamper of their products, I'm purchasing those products, right? So of course, if they're also making money in it, why wouldn't they be very cordial about it? Right. So
I mean, I don't shy away from spending money in these kind of things when I know it will benefit my brand in some or the other way. Right. What are your marketing budgets like now? So we spend around like 10 lakh rupee a month. A month. Yeah. Right. Yeah. Including ads? Yeah, including ads and everything. No. Yeah. Right. And who does your styling? आपकी brand कैसी लगेगी? So see, everything which is related to creative and marketing is with me right now. Right. Even the designing part is with me. Okay. Because that these three things I want to take the charge of. I also feel very easy about it. I don't feel like it's a big task for me because I've gotten that expertise. अब आप फाउंडर हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ भी काम नहीं करोगे. तो ये दो तीन चीजें मैंने खुद को असाइन की हुई है. Rest I have a team for dispatching and then I have a team the same team does the RTU, the returns and everything that comes in. I have an intern, social media intern, who helps me with creatives. Posting. No, posting also I do. They help me with creatives. So if I need some creatives, I tell them that I need it this way, right? So I'm very expert. So initially when I started this Daisy, everything I did by my own self. All creatives, all everything from packing to literally taking RTOs and everything. So I know it all. Honestly, I know how can I get it done. So it's very easy for me to be able to also spot mistakes when the other person is working. Right. So when you have interns and when you have people, they also grow because of that. Because if you have knowledge, you can teach them. If you don't have that knowledge, उसके बाद क्या होता है, वो जो करके देते हैं वो उससे आपको okay रहना पड़ता है. Yeah, you have to settle. Yeah, you have to settle as in आपको पता ही नहीं है ना, तो आप settle ही कर रहे हो. But आपको कोई चीज पता है कि आपको क्या चाहिए. So for that I have, for Instagram stories also she helps me. Yeah. Right. And backend पे जैसे shipping के लिए कोई है तो packing के लिए भी कोई है. 3-4 प्रोसेसेस होते हैं उसमें, तो वहाँ पे कोई है. तो ऐसे करके हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लोगों की टीम है इधर. और हमारे मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 50 कारीगर्स हैं who makes just Daisy. Wow. So yeah. You mentioned your products are vegan. What's that like? So see, honestly, vegan is, I mean, why do we say vegan? Because we don't use animal leather. We use fox leathers. We use PUs. So that's why we call it vegan. But I mean, vegan, as much as it is a cause, to be very honest, for businesses, it is also a culture. Yeah. Right? They want to make it a fashion statement. जैसे पहले लेदर को प्रमोट किया जाता था, ओरिजिनल लेदर, उस तरीके से आज वीगन को प्रमोट किया जा रहा है. आई थिंक उस टर्म का कमर्शियलाइज होना भी अच्छा है बिकॉज इट प्रमोट्स इट. इफ इट प्रमोट्स नॉन लेदर प्रोडक्ट्स. सो यस. You were mentioning that you like to do things on your own, by your own self. Yeah. Does that create issues when it comes to trusting someone else? No. So पता है क्या है, बहुत सारे मतलब मेरे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स मैंने बिल्ड किए विद टाइम विद सम बिजनेसेस एज वेल. और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि डेलीगेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. क्योंकि जब आप खुद से कुछ शुरू करते हो ना, वो इतने क्लोज होता है आपके दिल के कि आपको बड़ी मुश्किल होती है टू डेलीगेट. प्लस आप उस जोन में भी होते हो क्योंकि आप एक चीज करके इतनी एक्सपर्टीज आ चुकी होती है, तो आपको लगता है यार मैं किसी को समझाऊंगा, मैं खुद ही ना कर लूं. बट हम उस समय ये नहीं समझ पाते कि आपको समझाना सिर्फ 3 या 4 ही बार पड़ेगा, बट वो काम आप एवरी अदर डे कर रहे हो. सो क्या आप बार बार उस काम को खुद कर सकते हो? सो आई हैव 70 or 80 kind of work that happen in my business. Right? Just 3 parts I'm handling, but other parts are being handled by team. Right? Of course, अगर मैं 70-80 चीजें बोल रही हूँ तो 3-4 चीजें कोई करता होगा, 5-6 चीजें कोई करता होगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता है. बट वो जो डेलीगेशन है वो स्टार्ट यहाँ से होता है जब आपको एक पॉइंट पे आप शुरू में आप सब करना चाहते हो. फिर एक पॉइंट पे आप फील करते हो कि सब करने की वजह से मेरी जो खुद की एनर्जी की यूटिलाइजेशन है वो नहीं हो पा रही है. वो बहुत एग्जॉस्ट हो रही है. फोकस ऑन बेटर थिंग्स एज एन एंटरप्रेन्योर. यस, एज एन एंटरप्रेन्योर व्हेन यू स्टार्ट सीइंग दैट आपके एफर्ट का एक वैल्यू है. आपकी जब आप बिजनेस करते हो और आपके हर घंटे की वैल्यू हो जाती है. बिकॉज
आपको पता है अगर आप यहाँ टाइम नहीं लगा रहे हो, विच इज मतलब कोई ऐसी जगह जो वर्थ नहीं है, और जहाँ आपको लगानी है दैट्स मेकिंग यू वैल्यू, तो आप ऐसी जगह पे लगाओगे जहाँ आप अपना 1 घंटा देके XYZ 10,000 20,000 कमा सकते हो, और 1,000 रुपए का काम किसी को दे दोगे, डेलीगेट कर दो, क्योंकि आपको पता है आपकी एफिशिएंसी और आपकी पावर ये है कि आप उस 10,000 पे 20,000 पे फोकस करोगे इंस्टेड ऑफ द 1,000, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो डेलीगेशन स्टार्ट यहीं से होता है जब आप इस चीज फर्स्ट स्टेप को रियलाइज करते हो कि इवन इफ आई थिंक आई कैन डू इट ऑल, आई कांट, राइट? सो यहाँ से फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। सेकेंड स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है, सेकेंड यहाँ से होता है जब आप एक बंदे को रखते हो और उसको उतना ही लिमिटेड काम देते हो, बहुत कम शुरू में, अंटिल वो अपना ट्रस्ट डेवलप करता है, क्योंकि ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, राइट? हमें लगता है नहीं हो पाएगा, फिर आप उससे धीरे धीरे करके, आपने उसे रखा हुआ है, आप छोटे छोटे काम करा रहे हो, फिर आप धीरे धीरे करके टास्क देते हो बड़े बड़े, और वो जब अपने आप को प्रूव करता जाता है, आप भी ईज में आ जाते हो, आप भी कम, जैसे आप नए फ्रेंड्स बनाते हो, कैसे आप पहले शुरू कम बातें उन्हें बताते हो, ऐसे अनइम्पोर्टेंट, मतलब उतनी क्रूशियल बातें नहीं बताते, बट फिर कैसे आप डीप डाइव हो जाते हो बिल्कुल उस चीज में, तो इवेंचुअली आप अपनी टीम पे वैसे ही डिपेंडेंट हो जाते हो। आज लिटरली कई बार मेरी टीम मुझे बता रही होती है, मैम आपको ये करना है, ये मिस हो रहा है, तो मतलब ऐसी टीम आपकी इवेंचुअली क्रिएट हो जाती है। तो टू डेलीगेट सूनर द बेटर, बिकॉज आप अपनी टाइम और एनर्जी उतनी बचाओगे, और जो आप मेन चीज कर रहे हो उससे डिफोकस नहीं होगे, प्लस बर्नआउट नहीं होगा आपको। बर्नआउट हो जाता है बहुत ज्यादा कि यार सब कुछ, हाँ, और फिर 3-4 दिन आप 5 दिन ब्रेक ले लोगे, तो बिजनेस ऐसे नहीं चल सकता ना कि आप 5 दिन ब्रेक ले लो फिर आप वापस आ जाओ, एक बूमरैंग नहीं बन सकते आप उसमें। तो ये एक चीज है डेलीगेशन के साथ। हाउ हैज योर मेंटल हेल्थ बीन ड्यूरिंग दीज times? After Daisy, it's been really good, because after Daisy, a phase changed of my life. Not just because of Daisy, because in general, I learned from my past mistakes. तो वो चीजें you know मेरे लिए वर्कआउट कर गई इस तरीके से कि बहुत ही एक नर्चर्ड एनवायरनमेंट, मतलब डेजी को मैंने नर्चर्ड एनवायरनमेंट दे पाई हूँ, डेजी मुझे दे पाया है। सो इट्स बीन वेरी नाइस, और मजे आए हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप पे ही जैसे अब मान लो मैंने देखा है बहुत सारे बिजनेसेस हैं, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम 1-1.5-2 साल वेबसाइट ही नहीं लॉन्च करते। हम पहले वेबसाइट बन चुकी थी, फिर इंस्टाग्राम बना है, तो जब ये छोटी छोटी चीजें आपकी अलाइंड होती है ना, तो आपको मुश्किल नहीं होती एक DM पे जाके ऑर्डर लेना। तो आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हो, किसी से DM पे बात कर रहे हो, फिर वो आपको ले रहा है नहीं ले रहा, आपको उसमें दिमाग भी लग रहा है, अरे यार इसने पूछा, इसने क्यों नहीं लिया, एनर्जी लग रही है। इससे अच्छा कोई वेबसाइट पे आया, उसने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, उसमें आप इतनी एनर्जी नहीं लगाओगे। आया, आपके पास ऑर्डर है, आपको उसे प्रोसेस करना है, तो धीरे धीरे करके आप उसे सिंप्लीफाई करते जाओगे। तो जब आपकी छोटी छोटी चीजें अलाइंड होंगी, कमिंग बैक टू, आपकी मेंटल हेल्थ भी कहीं ना कहीं सही रहेगी, क्योंकि आपको बर्न आउट नहीं होगा। सो एवरीथिंग इज वेरी कनेक्टेड। इफ हम सिर्फ वर्क की बात करें, ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ इज वेरी ब्रॉड इन जनरल। Let's come back to, I think, your marketing. You have been trying a lot of influencer marketing also. Yes. कैसा जा रहा है? With all my luck and with all my hard work and my skills, I've had great human relationship with influencers. See, honestly, it's not tough to pay and get work done. है ना? आप पे करके काम करा सकते हो, हम भी पे करते हैं, है ना? But क्या पे करके आप वैसा काम करा सकते हो जैसा आपको चाहिए? वो दिल से, जब कोई दिल से कनेक्टेड होता है, मन से कनेक्टेड होता है ना, एक इन्फ्लुएंसर को सिर्फ ये नहीं फील होता कि यार सिर्फ एक मनी, सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, ऐसा फील नहीं होता। वो आपसे कनेक्टेड फील होते हैं, तो आपका जो काम आता है, जो आपके पास जिस तरीके का काम आता है, उसकी एक फीलिंग अलग होती है। सो like you want your social media to have engagement, influencers also want their social media to have engagement, and it's important to engage with influencers who you feel connected to, who you follow, or who you feel aligned to. So that is like a very major step of how, you know, we can build this relationship with them. Everyone wants to be appreciated, right? कोई काम कर रहा है, आप जाके comment करो, like करो, उनको appreciate करो. It is the start, and then that's how you build that relationship, because you come and notice. Yeah, right.
What kind of influencers are you targeting? Like micro, Micro. At the moment, micro. Achha. I mean, our business focuses. I mean, our marketing budget, our ad spends are basically it's focused on ad spends more, and not a lot on influencer marketing. Right. So you are doing mostly barter collaboration? No, we are not doing just barters. I mean, it must be 10-20%. But even the micro, if we are doing, those are paid ones. But I mean, even micro influencers, I would tell you, charge 20,000-25,000 rupees for a reel. Wow. Yeah. So you can think of that it is a micro influencing world, but if you if I talk to you about an influencer having 1 million and I wouldn't name it here, but a renowned influencer who has 1 million or 2 million fashion influencer, their charges for a single story is approximately 1.5 lakh rupees. So it's not possible for a homegrown label to reach to that point very soon. एक स्टोरी पे 1.5 लाख रुपए खर्च करना इज मतलब पॉसिबल तो सब है, बट इट्स नॉट कोई हलवा. इट्स कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं. अल्टीमेटली it should draw, of course, influencer marketing is not only about sales. It's a lot about making recall value and a lot of more things, but उतना conversion, एक स्मॉल बिजनेस को कन्वर्जन भी रिक्वायर्ड होता है यार. स्मॉल बिजनेस ROI तो देखोगे यार. हाँ बिल्कुल, ROAS इतनी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं. मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, जो बड़े ब्रांड्स हैं, Amazon, you go on any big influencers page who's doing who has a million, I mean honest followers, 2 million followers, you will see that they're collaborating with brands like Amazon and Flipkart and Meesho and or probably Sabyasachi, or really big brands with huge chunk, who have huge chunk of funds or money. Why? Because they can spend like 1.5 lakh on a story, or 5 lakh on a post, or 4 lakh on a post. Right. So yes, I mean, if by any chance any small businesses are watching me here, I would suggest these 3 or 4 really great influencers that you must collaborate with. One is Chahat Sarogi. She is amazing at what she does, amazing, and she has a great community of followers who love her, who love to buy. I mean, she has, if you go and check her comments, she has people, I mean, comments are all aise hamesha PP price. She has that kind of customer, I mean that kind of followers who are really the buyers. Right. The second one is Nisha Gailuti. She is great, amazing, right? Again, genuine followers, you will get buyers. And third one is Anushka. She is no more a micro influencer. She approximately has 200k followers, but she is great too. Fourth one is Sapna Rai. Amazing work. She is now known for the boho looks and what she does. So I mean, these are my personal suggestions with my experience. I think this is going to benefit a lot of people, so thank you so much. Your products are, I think even in the introduction I also said that they reflect your personality. They're very bold, chunky, bold colors. उनके लिए influencers ढूंढना, I'm sure you should have that eye who can carry footwear like that along with their lifestyle choices and all. So how do you choose that? Yeah, देखो, काम करते करते सबसे पहले आपको ये तो आइडिया लग ही जाता है. When you're in the industry for 3 years, plus you've worked with influencers who really work well when it comes to doing their work, and you've collaborated with them, आपको insights पता होती है, थोड़ा अंदर का भी आपको पता चल जाता है. तो वो स्पॉट करना कि आपके लिए क्या वर्क करेगा, वो बहुत पॉसिबल हो जाता है उस रीजन से भी. राइट. अच्छा, ये समझना, ये भी एक स्टडी है. जब आप अपना सोशल मीडिया देख रहे होते हो, वो कर रहे होते हो, तो आप किसी की भी प्रोफाइल पे जाके ये देख के इजीली समझ सकते हो सिर्फ उनके कमेंट्स हैं,
क्या सेम ही लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं हर बार, राइट? या क्या उनके कभी सिर्फ हाय यू लुक गुड, या सिर्फ एक मेल ऑडियंस है, हे हेलो ब्यूटीफुल, उस तरीके के कमेंट्स हैं, या हाय व्हाट्स द प्राइस, कैन आई गेट द लिंक ऑफ द प्रोडक्ट? यू कैन गेट टू नो सबसे पहले तो कि क्या आपके लिए मतलब क्या इन्फ्लुएंसर्स, एक सबसे पहले क्या वो जेन्युइन है, सेकंड उसके बाद आप कनेक्ट करोगे, आप उनसे कनेक्ट करोगे. और यूजुअली टू बी मतलब मुझे इट्स बीन माई लक, आई फील लाइक influencers love to have daisies. I've always had that respect from them. It's never, I mean, if I have approached someone, it's always been a good experience. I mean, mine. Maybe probably because I have that experience now to know, and also because they also value me as a brand. I mean, Daisy as a brand. Me and Daisy, because my name is also Daisy. My God, literally, I've started spelling my name as, I mean, my spelling is DAISY, but my brand spelling is DAISIE, and I literally breathe, eat, and everything my business. So I've started spelling my name as DAISIE. But why did you think of this name? It's my name, so why not invest in something which is मेरा खुद का यार. उसी से याद आया, आई थिंक आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में भी अब. Yeah, I am doing that. I've started the journey. Yeah, now. Because entrepreneurs are the new influencers. Yes. After Shark Tank India, that culture has evolved, and I'm really grateful about it. Yeah. मुझे ना पहले जब कोई इन्फ्लुएंसर होता था जो अपनी ब्रांड खोलता था और विद इन अ मंथ और 2 months उनके 30, 40, 50,000 लाख फॉलोअर्स हो जाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं. और अब लगता है उन्होंने कितनी मेहनत की होगी टू रीच देयर. तो मतलब फिर मुझे एक दिन ये अवेयरनेस आई कि यार वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने भी तो इतना टाइम मेहनत करी है, तब जाके वो अपना ब्रांड खोल रहे हैं और देन इट्स गेटिंग द रीच. तो उससे मुझे ये रियलाइज होता है कि पर्सनल मतलब आप पर्सनल ब्रांड की जो वैल्यू है वो बहुत है. इट विल टेक टाइम, बट अगर टाइम लेगा ही तो आज स्टार्ट कर दो ताकि आज से वो टाइम स्टार्ट हो जाए. और जितनी आई थिंक जल्दी स्टार्ट होगा उतना रिफाइन भी होते जाओगे तुम बाय द टाइम यू रीच. बिल्कुल एग्जैक्टली. और छोटी यार आप मुझे बताओ, लाइक हाउ डिड यू फाइंड मी? सोशल्स पे तो आप शायद मुझे नहीं करते थे फॉलो. पहले नहीं करती थी, नहीं करते बट मेरे को एकदम से मतलब मेरे को आपकी बात याद आ गई ना, जैसे हमने बास्केटबॉल के टाइम पे डिस्कस किया था, तो यू टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट योर ब्रांड और वेरी प्राउड ऑफ योर ब्रांड. देखो ऐसा है और मैं ये करती हूँ और यू नो बहुत क्रेजी ब्रांड है मेरी, एंड वी हैव अबाउट 20-30K फॉलोअर्स. मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, बट मैं हमेशा मतलब आई थिंक एंटरप्रेन्योर्स कॉल मी पर्सनली, दे हैव दैट ऑरा दैट आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू. तो वो जब हुआ फिर एकदम से now I started this, तो I thought of reconnecting. तो मतलब बट कहीं ना कहीं आज अगर मेरा एक पर्सनल पेज था, आपने उसे देखा होगा, आपको मतलब आप कुछ तो कहीं देखोगे. तो अगर मैं कहीं पे होंगी ही नहीं मतलब जब आपने मेरे को बताया था, मैंने घर जाके डेजी देखा था. अच्छा. आराम से पूरा. तो डेजी तो आई आपको पता था. ठीक है. बस अब चलो डेजी भी है, आज डेजी है, अगर कुछ एग्जिस्ट करेगा तभी तो वो ढूंढ पाएगा ना कोई भी. तो बीइंग देयर इज इम्पोर्टेंट. वन डे वो देयर से समवेयर यू विल रीच, बट बीइंग देयर टू स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो जो एक फियर है ना ऑफ नॉट स्टार्टिंग, ऑफ बीइंग जज्ड कि यार पहली रील डालेंगे व्यू ही नहीं आएंगे और अपने लोग देखेंगे बोलेंगे 20 व्यू 30 व्यू. हाँ क्या मतलब. अरे बट वन डे इट विल बिकम दैट मिलियन आल्सो. तभी भी तो वो लोग देखेंगे. मतलब तभी ये चीज रिकॉल करनी है. अगेन इट्स कंपाउंडिंग. मतलब आज 20 है तो इट विल कंपाउंड इनटू लाइक अ 200K, यू नेवर नो. और ये सोचना पड़ेगा ना कि यार स्कूल गए थे तभी भी तो एक फर्स्ट डे था, कुछ खेला था तभी तो कोई फर्स्ट डे था, बट वो फर्स्ट ही नहीं था ना. यू ग्रू इन इट ना, तो यू विल ग्रो हियर आल्सो. हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं, इतने मतलब ईगो ही है ये एक तरीके का कि हमें लगता है नहीं यार, उस जजमेंट की वजह से हम अपने लिए जो करना चाहते हैं हम वो ही नहीं करते. जो मतलब हमें फॉलो करना चाहिए कि यार मन है ये करने का. और वो 4 लोग क्या सोचेंगे. अरे वो 4 लोग अपने बारे में सोचेंगे, तुम्हारे बारे में सोचेंगे. और अगर वो अपने बारे में नहीं सोच रहे तो वो उनका इश्यू है भाई, और वो औरों के बारे में सोच रहे तो
God. काम ऐसा करो कि 4 लोग सोचे कि वाह 4 लोगों में इसका इतना नाम हो गया है. Wow. It was a wonderful conversation. Likewise, I had so much बहुत ही fun. मजा आ गया. और मतलब ऐसे लग रहा है कि आप मतलब जस्ट सिंक हो रही थी ना जर्नी. बीच में मुझे लग रहा था यार अगर इतने कॉन्फिडेंस से मैंने इतनी चीजें की होती तो मेरी भी 7 फिगर एजेंसी होती आज. बट बना लेंगे सब हो जाता है. टाइमिंग बोलते ना, डोंट कंपेयर योर फर्स्ट चैप्टर टू समवन else's 10th chapter. So मतलब आई एम नॉट डिनाइंग, आई हैव सीन ब्रांड्स जो मुझसे पहले स्टार्ट होके मुझसे नॉट फुटवेयर ब्रांड्स बट फुटवेयर भी रही होंगी बट मेरी जानकारी में नहीं है, बट मुझसे पहले स्टार्ट होके वो कुछ मुझसे बेटर बन गई. तो हर किसी की अपनी जर्नी है यार. आप अपनी जर्नी पे फोकस करो, दैट्स इट, सब हो जाएगा. एंड मैनिफेस्ट, ओवर यूज वर्ड है बट बहुत सच्चा वर्ड है. अपनी लाइफ को ना मैनिफेस्ट करो. What do you do to manifest? बस अच्छी चीजें. नो रात को सोते हुए अपनी सो मैं अब्राहिम हिक्स सुनती हूँ. एंड मतलब क्या है वो, कैसे है वो, आपको जाके सोशल मीडिया पे ही वो करना पड़ेगा उनको उसके बारे में. बट इट्स अबाउट मैनिफेस्टेशन ओनली एंड सेइंग एंड सेंडिंग गुड वाइब्रेशंस टू यूनिवर्स. तो रात को सोने से पहले 10 मिनट इमेजिन करो. लेट्स से आपको एक अच्छा घर चाहिए था. इमेजिन करो उस अच्छे घर में तुम भाग रहे हो, खेल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, है ना. और वो इमेजिन करके सो जाओ. मतलब इमेजिन दैट यू हैव इट एंड यू विल हैव इट. You will have it. I am legit saying one What fine have day. you manifested? Everything. My whole business I've manifested. Everything that's happening in my life ना I've manifested. मेरी लड़ाई भी हो जाती है ना किसी से, अपने मन में देखना within 2 minutes everything is going to be fine and it gets fine. Every damn thing if you're connected. and मतलब देखो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप हैप्पी थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स ऐसा सोच रहे हो तो कभी भी आपको नेगेटिव नहीं आएगा. आप रहे तो इसी दुनिया में रहे हो, उन्हीं लोगों में रहे हो, इट विल हैपन. बट आप वापस से अवेयरनेस में जाओगे ना तो आई मीन जस्ट एक अवेयरनेस में, आपको कांस्टेंट अवेयरनेस में खुद को लाना है. एंड यू हैव टू नो दिस दैट इफ यू आर थिंकिंग गुड थॉट्स इट्स गोना हैपन. It's going to happen. Maybe आपका first project वैसे work ना करे, second ना करे, but your journey is going to take you there. Yeah. So, Wow. just believe in the universe. So much to learn Universe from made you. me rich. I think सब अब पैसा ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं. जब से उनको पता चला है ना, मैंने सबके मैनिफेस्टेशन बोर्ड में या तो there are fancy locations that they want to travel, fancy cars that they want to you know. It's about just having happy thoughts. मैंने ना उनका एक ये पढ़ा था जिसमें उन्होंने बोला कि if you think that I want to have this and then I'll be happy, no. You will be happy and then you will have this. Yeah. So but it's just that some people think that it's foolish, and then in foolishness they lose out on the opportunity of having everything. And I want to believe the foolish stuff if you think it's foolish, and I want to get what I want. And it's just that you are not just wasting time of your life, you're wasting the magical years. Like you won't have this kind of energy to deal with shit after a point of time. Hell yes. Hell yes. मतलब इतना मैजिक है ना इन इयर्स में कि लोग बोलते ना, आप इवन विद स्पिरिचुअलिटी लोग बोलते हैं, हम मेरे को आई होप आई एम नॉट शिफ्टिंग द टॉपिक अ लॉट, बट इवन विद स्पिरिचुअलिटी लोग बोलते हैं यार ये कोई उम्र थोड़ी है भगवान के पास जाने की. तो तुम अपने आप को, जब तुम नए हो तब तुम भगवान को दोगे, जब तुम पुराने हो गए तब तुम दोगे भगवान को कुछ. जब तुम फूल चढ़ाते हो है ना, तो क्या फ्रेश फूल चढ़ाते भगवान को कि कोई वो ऐसा फूल चढ़ाते जो बासी हो गया. तो आज हम फ्रेश हैं, हमारी एनर्जी, हमारी वो, क्योंकि देखो आज तुम वहां जाओगे, अच्छी चीजें हम कुछ तो सुनेंगे. आज मेरे सोशल मीडिया पे एक मैंने सीरीज पिताजी मतलब सैटरडे विद पिताजी और उनकी बातें, एक वो मैंने मेरे बिजनेस पेज पे ही चला रखी है. और अभी आई थिंक इट्स जस्ट ऑन सैटरडेज आई हैव थॉट ऑफ दैट आई विल पुट द रील्स ऑन सैटरडेज. जो सेकंड
रील जो मैंने डाली है, तो जब आप बैठोगे ही नहीं ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ नॉलेज है, अगर मैं अपने फादर के साथ बैठूं ही नहीं, अगर मैं मंदिर जाऊं ही नहीं, कब मैं वो बातें सुनूं ही नहीं, तो ऐसे नहीं सोच सकते कि बस ना काम करते रहो और सक्सेसफुल हो जाओगे. यू नीड टू हैव विजडम. तो कनेक्टिंग द डॉट्स, फिलॉसफी होनी चाहिए एक लाइफ में जो कनेक्ट करेगी. फिलोसफी होनी चाहिए, होप होनी चाहिए. माई फादर यूज्ड टू सेल कैंडल्स ऑन द रोड कि दीदी कैंडल ले लो. I mean, if I look at him, I see that hope of, oh, you can become this. So when you talk to your own people, आप वो hope भी तो ढूंढते हो कि एक दिन कभी कोई कुछ था but आज वो क्या है. तो बहुत सारी चीजें हैं. Having wisdom while the journey is also important. Money you should earn, but wisdom also you should earn. Experience also, that too you learn only. काम करोगे तो. So yes. Wow. It was so much fun. I was hell nervous. I thought यार कुछ ऐसे गड़बड़ हो गई तो बोल रहे थे कि फ्रेमवर्क भेज दो. मैंने कहा कोई फ्रेमवर्क नहीं है भाई, ये रिलैक्स्ड कॉन्वर्सेशन है. फिर मुझे लगा यार मैं तो वैसे ही इतनी बातू नहीं हूँ, बातें कर लेते लेंगे. इनफैक्ट मैं जब किसी गेस्ट के पास जाती हूँ मैं बहुत नर्वस होती हूँ यार एक दिन से पहले. एंड देन यू नो देयर इज दैट बिलीफ कि यार तू तो बातें कर लेगी. मतलब तो ठीक है, तू तो कोई, दैट्स व्हाई आई डोंट नीड लाइक अ क्वेश्चनर इन माय हैंड कि मेरे अंदर से वो बात करते करते इतने क्वेश्चंस आते रहते हैं कि अच्छा तो फिर then you connect. And I mean, whoever's watching, this one thing that even when she would have started her journey, right? आपने भी तो जब फर्स्ट स्टार्ट किया होगा वो कुछ भी नहीं होगा ना. But बहुत स्कैरी था. बहुत स्कैरी था. But so one thing, मैंने फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे थे तो मेरे मन में क्वेश्चन था कि यार सक्सेस और फेलियर में क्या डिफरेंस होता है. मैं खुद में सोच रही थी. आई थिंक वो डिफरेंस है ना सिर्फ यही होता है कि वो इंसान अपना फियर क्रॉस कर पाता है कि हो जाएगा. वो फियर क्रॉस हो गया तो सब हो गया. ट्रू. कहीं मतलब 0 से कहीं तो आ गए ना, चाहे 0 मतलब 5 पे आ गए. बिल्कुल बिल्कुल. कुछ तो किया ना. बिल्कुल. एक्शन, आई थिंक एक्शन इज द मोस्ट. तुम कितना भी बोल लो, तुम्हारी इंटेंशंस, तुम्हारी बातें, मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, इन द एंड इट्स द एक्शन दैट यू आर टेकिंग टुडे. यस. That's and the last thing I would want to say is that the best day to plant the tree was 20 years ago, but the second best is now. Wow. So I think हम रोड के डेड एंड पे आ गए हैं और इस कॉन्वर्सेशन के भी साथ साथ हमारे डेड एंड पे भी एक मंदिर है पर बड़ा प्यारा सा. Oh yeah, so cute. Thank you so much, Daisy. It was lovely having you. जल्दी मिलेंगे, है ना? And we'll plan like a coffee instead of this setup. For sure. For sure. Bye guys, see you in the next episode. It was a fabulous conversation. मैं इतना relate कर पाई ना उनसे on her journey, and there's so much to learn from her. Literally we were sitting together after the chat and I was trying to understand more and dive deeper into her brain, and oh my god, there's so much to unveil. But आज के लिए इतना ही. There is another chat with the founder that I've had, जिनकी काफ़ी similar journey थी, but as a fashion entrepreneur, she also doesn't have a degree in fashion at all, और उन्होंने अपना एक बहुत बढ़िया बिजनेस बनाया है. Her name is Sushti Bhatia. You can watch her episode as well. बाकी अब next पे मिलेंगे, and keep loving our channel, keep pouring in all the comments that you usually do. हमें बहुत अच्छा लगता है वो पढ़ के. Do subscribe and I'll see you in the next episode. Bye.